Hello everyone, welcome to all of you. Good morning all. Good morning to all of you. Hello everyone, welcome to all of you. Good morning. Hello everyone, welcome to all of you. Good morning to all. Hello everyone. आसी जान्तु क्लास रे. Good morning to all of you. Good morning to all of you. So once confirm करंतु ऑडियो वीडियो क्लियर अछि ना नाही. ऑडियो मेन ऑडियो काली एक्चुअली माइक्रो प्रॉब्लम हे जाइतिला. ओके तो एबे जस्ट गुटे टेम्पोररी एडजस्टमेंट रे आमे चालू छु. तो ऑडियो क्लियर अछि ना नाही कहंतु वंस. ओके दैट इज वेरी मच इंपोर्टेंट. तो वीडियो तो क्लियर आसीओ ही आसीओ. ऑडियो क्लियर अछि ना नाही. This is your second class of strength of material revision for your OSSCJE examinations. So जो भी भाई भौणी माने सुनुछंती मते तो गोट थरो कंफर्म करंतु ऑडियो क्लियर अछि ना नाही. वंस कंफर्म. सो माने ठीक ठीक से ऑडिबल ना नाही गोट थरो कंफर्म करंतु. Then we shall continue with the today's class. This is second class of OSSCJE revision class strength of material. Okay, so hello guys. ना नाही गोट थरो कंफर्म करंतु. Then we shall continue with the today's class. This is second class. So let's start the topic. Topic start करिवा. Okay, so देखंतु काली जो मु जिंस गुडा को एक्सप्लेन करिथिली काली कोन एक्सप्लेन करिथिली हुक्स लॉ को एक्सप्लेन करिथिली. ओके हुक्स लॉ को एक्सप्लेन करिथिली. हुक्स लॉ जाय हम पढिथिलु आरो ये फॉर्म टा हम पढिथिलु जनरलाइज्ड हुक्स लॉ. ओके वी हैव स्टडीड द कांसेप्ट ऑफ जनरलाइज्ड हुक्स लॉ. तो मु हुक्स लॉ रो एप्लीकेशन बताउछि. ओके सो रिवीजन रे फर्स्ट टॉपिक एप्लीकेशन ऑफ हुक्स लॉ. एप्लीकेशन ऑफ हुक्स लॉ. हुक्स लॉ देखंतु व्हाट आर द एप्लीकेशंस ऑफ हुक्स लॉ. फर्स्ट पॉइंट rectangular bar subjected to 3D stress. Subjected to 3D stress. Let's suppose we have a rectangular bar. This is your rectangular bar. Just a minute. This is your rectangular bar. ये जो rectangular bar अछि आ ऊपर 3 dimensional stress लागु छी. Let's suppose all stresses are tensile. Sigma x sigma y act करू छी and sigma z is acting. जदि एक्सिस विषय आपन को बतैबी तो काली भी बतैथिले एबे भी आउ थरे बतै दउची x axis y axis z axis. So along all the 3 dimensions stresses are acting. Let's suppose the height is h, width of the bar is b and length of the bar is l. hbl. ठीक अछि. तो आमे बेसिकली वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन काढिबा. ओके व्हाट वी हैव टू कैलकुलेट. वेरी गुड मॉर्निंग. वेरी गुड मॉर्निंग. What we have to calculate? We have to calculate the volumetric strain. Okay. So for this particular bar, rectangular bar subjected to 3-dimensional stress condition, volumetric strain volumetric strain माने upsline V, that is change in volume dV upon V. Okay, so upsline V is given as
change in length upsline L plus change in height upsline H plus upsline B, that is dl upon original length plus dh upon original height plus width dB change in width divided by original width. This is your volumetric strain for your rectangular bar subjected to three-dimensional stress conditions. Clear? So for this particular diagram, three-dimensional loading over the rectangular bar, the volumetric strain is given as upsline L plus upsline H plus upsline B. Clear? एमिति ठीक अछि तो मन रखिथिबे एबे देखंतु ये जो आमे लेखिलु तो एबे देखंतु along the x direction length अछि along the z direction width अछि along y direction height अछि आ माने आमे एमति भी लेखि परिबा this is upsline v is nothing but upsline x plus upsline y plus upsline z एमति लेखि परिबा एबे देखंतु एमति जदि लेखि परिबा तो काली गोटे फार्मूला में देखिदिलु upsline x upsline y upsline z जदि ये वैल्यूज गुडा को ये इक्वेशन रे मु फीड कर देबी तीनटा वैल्यूज को ऐड कर देबी तो मु गुटे इक्वेशन पाइबी व्हाट इज दैट पर्टिकुलर इक्वेशन देखंतु आई विल गेट ए फाइनल इक्वेशन upsline v will be equal to कोन sigma x plus sigma y plus sigma z divided by e minus 2 times mu divided by e sigma x plus sigma y plus sigma z एमती गुटे इक्वेशन मु पाइबी आकु सिंपलीफाई करिवा तो फाइनल एक्सप्रेशन आई विल गेट upsline v will be equal to sigma x plus sigma y plus sigma z divided by e आकु मु कॉमन नै गली 1 minus 2 nu क्लियर एबे देखंतु काली गुटे नोट मु लिखैथिली पॉइजन्स रेशियो रो फॉर परफेक्टली प्लास्टिक मटेरियल परफेक्टली ऑडियो क्लियर अछि फॉर परफेक्टली प्लास्टिक मटेरियल सब्सक्राइब करि दियंतु लाइक करि दियंतु पॉइजन्स रेशियो वैल्यू mu is equal to 0.5 तो जते बेले पॉइजन्स रेशियो ये ऊपर वाला इक्वेशन रे जते बेले मु पॉइजन्स रेशियो वैल्यू 0.5 पुट करिवि देन upsline v will be equal to what sigma x plus sigma y plus sigma z divided by e 1 minus 2 into 0.5 means 1 which is equal to upsline v equal to 0. It means what does it means? That is no change in volume. No change in volume. So for a perfectly plastic material, okay, for a perfectly plastic material, the volumetric strain value is 0. So ये जिनसोटा मैं एथ्रो कैलकुलेट करि पारु. Okay. So this is your first application. Second application. So good morning all of you. Second application. देखंतु solid circular bar पई आमे काढिबा. Solid circular जय जगन्नाथ. Solid circular bar. Let's suppose गोटे solid circular bar अछि. Okay. Means आर गोटे diameter अछि d. आ ऊपर 3 डायमेंशनल स्ट्रेस अछि. Okay. 3D loading अछि definitely. तो आ पई जो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन आमे काढिबा. Okay. For solid circular bar, let's suppose length is L. Our diameter जो अछि, this is your d. So for this particular solid circular bar, upsline v, that is volumetric strain, आपण केमती कैलकुलेट करिवे dl upon l plus 2 times dd change in diameter upon original diameter. आमाने कोन upsline l plus 2 times upsline d. This is the equation for solid circular bar. बतैथिली आरो. Okay. Now case 3. Spherical body. Spherical body. So for a sphere, let's suppose we have a sphere. Our diameter होची d. Let's suppose sphere रो वॉल्यूम हमें केमती लिखिबा pi by 6 d cube. तो change in volume pi by 6 our derivative dv माने 3 times d square dd माने dv upon v equal to simplify जते बेले करिवे माने
ये dv तो आपण कैलकुलेट करिले डिवाइडेड बाय v कर देबे देन यू विल गेट 3 टाइम्स dd by d आ माने कोन 3 टाइम्स अपस्लाइन d ये टाइप डेरिवेशन होउछ सो फॉर ए स्फेरिकल बॉडी वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन अपस्लाइन v is equal to nothing but 3 times strain along the diameter clear तो ये these are the some applications of your Hooke's law which is very much important तो मु बेसिकली आपन को चारिटा फार्मूला एबे देली कुकुडा देखंतु फर्स्ट फॉर रेक्टेंगुलर बार सब्जेक्टेड टू 3 डायमेंशनल स्ट्रेस कंडीशन तो आपै मु वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन जते बेले कैलकुलेट करिली देन इट इज नथिंग बट एप्सिलॉन l प्लस एप्सिलॉन h प्लस एप्सिलॉन b व्हिच इज नथिंग बट एप्सिलॉन x प्लस एप्सिलॉन y प्लस एप्सिलॉन z ठीक अछि तो एबे देखंतु काली गोटे फार्मूला सेट मु तीनटा फार्मूला देइथिली एप्सिलॉन x एप्सिलॉन y एप्सिलॉन z पई तो ये तीनटा को मु जदी ऐड करि देबी व्हेन आई एम गोइंग टू ऐड ऑल दोस थ्री ओके मींस एप्सिलॉन v इज इक्वल टू मते ये इक्वेशन जणा पड़ला ना इट इज नथिंग बट एप्सिलॉन x प्लस एप्सिलॉन y प्लस एप्सिलॉन z तो जते बेले मु ऐड करि देली आफ्टर एडिंग आई एम गेटिंग ए इक्वेशन दिस इज द इक्वेशन एप्सिलॉन v इज इक्वल टू सिग्मा x प्लस सिग्मा y प्लस सिग्मा z डिवाइडेड बाय e 1 minus 2 nu नाउ जदी मु कंडीशन लगेली फॉर परफेक्टली प्लास्टिक मटेरियल पॉइजन रेशियो वैल्यू इज इक्वल टू 0.5 तो ये इक्वेशन रे पुट जते बेले करिली then I got volumetric strain value as 0 that is no change in volume for plastic material for perfectly plastic material तापर सेकंड अपन को एग्जांपल मु देली सेकंड मींस आर कि we have a solid circular bar जार लेंथ होची l diameter होची d for this particular bar your volumetric strain is given by this expression third condition is spherical body for a sphere your volumetric strain is given by like this epsilon v equal to 3 times epsilon d clear so this is one application of Hooke's law another application next application of Hooke's law very important calculation of axial deformation okay axial deformation माने कोन let's suppose we have a bar example अपन को दोछ we have a bar we have a prismatic bar okay we have a prismatic bar Hooke's law is valid for prismatic bar we have a prismatic bar माने throughout the length of the bar the cross section is same okay let's suppose this is rectangular bar आ ऊपर मु गुटे टेंसाइल लोडिंग लगेली p तो ये लोडिंग जगु डिफॉर्मेशन केते हेबो in longitudinal direction this particular delta value you have to calculate this particular delta value you have to calculate prismatic bar means bar of uniform cross section bar of uniform cross section ओके तो ये डेल्टा जो अच्छी ना आपको यहाँ में कोई एक्सियल डिफॉर्मेशन एक्सियल डिफॉर्मेशन ये जो डिफॉर्मेशन अच्छी दिस इज इलास्टिक इन नेचर दैट इज ये जो लोडिंग एक्ट करूची ये लोडिंग रिमूव करी देला परे ये डिफॉर्मेशन भी वैनिश हे जिवो इलास्टिक डिफॉर्मेशन आर टेम्पररी नॉट परमानेंट इन नेचर प्लास्टिक डिफॉर्मेशंस आर परमानेंट इन नेचर क्लियर तो सुनंतु आम पाखरे हुक्स लॉ अछि Hooke's law कोन stress is directly proportional to strain means E into upsline so stress equal to P divided by A load divided by cross section area equal to E into strain deformation divided by length तो एठु डेल्टा वैल्यू कैलकुलेट करियार अछि तो डेल्टा will be equal to deformation PL by AE this is the formula PL upon AE अभी ये जो फॉर्मूला अच्छे दिस पर्टिकुलर फॉर्मूला इज वैलिड फॉर prismatic bar only ठीक अच्छे वैलिड फॉर prismatic bar only मन रखिथिबे तो डेल्टा इक्वल टू व्हाट PL by AE सेकंड कंडीशन material must be isotropic and homogeneous material must be isotropic
and homogeneous. Third condition कौन एठी देखंतु एठी मु लोड जो लगै छी this particular load is constant along the length of the bar means एठी गोटे सेक्शन नउची xx let's suppose एठी भी आपण सेम लोड p देखिबे एठी जदी मु सेक्शन नेबी then axial load will be same p only, that is throughout the length of the bar the loading is constant. So for that particular condition this equation is valid, that is load must be constant throughout the length, throughout the length. Clear? Getting the point? तो ये जिनस गुड़ा को मन रखिथिबे एबे देखंतु तो हमें पाइलु कोन इक्वेशन गुडे डेल्टा इक्वल टू pl by ae गुटे मिनिट pl by ae we got this particular equation. So आपको टिके जदी मु रीअरेंज करिवि तो मु लिखि पारिबि डेल्टा इक्वल टू p डिवाइडेड बाय ae upon l. ये जो ae upon l अछि ना आपको हमें कहबा एक्सियल स्टिफनेस. This is called as axial stiffness. तो आपन को जदी क्वेश्चन रे पचार दवा axial stiffness then you have to calculate ae upon l, ae divided by l ये वैल्यू कैलकुलेट करी आपन को बताइबार अछि. This is called axial stiffness. Now ae टा कोन, what is a into e? This is called as axial rigidity. Clear? ये सब जिंस एतकी मन रखिथिबे. ओके एबे सुनंतु तो एटा तो हमें प्रिज्मेटिक बार पे इक्वेशन देलु. फॉर नॉन प्रिज्मेटिक बार सेकंड केस नॉन प्रिज्मेटिक मेंबर नॉन प्रिज्मेटिक मेंबर भितरे फर्स्ट अछि आपण स्टेप्ड बार. स्टेप्ड बार, स्टेप्ड बार मींस लेट्स सपोज ये टाइप किछि आपण पाखरे बार टा गुटा अछि लाइक दिस सम लेंथ तापरे ये श्रिंक हेला लाइक दिस आउटर ये क्रॉस सेक्शन एरिया बढ़ी गला लेट्स सपोज लाइक दिस. एठी आपण लोडिंग लगी छंती टेंसाइल लोडिंग लेट्स सपोज p. This is one first member, second member, third member. Length L1, cross section area A1. Let's suppose Young's modulus of elasticity of first member is E1. Length L2, cross section area A2. Young's modulus of elasticity is E2. Length L3, cross section area A3. Young's modulus of elasticity is E3. Let's suppose. Ductile माने along the length आपण वायर टाकू ड्रॉ करि परिवे, that is called ductility. Okay, along the length माने बहुत पतला रु पतला लेंथ रे आपण वायर टाकू ड्रॉ करि परिवे. बट मेलाबिलिटी मींस आपण थिन शीट रे पतला शीट रे ओके पिट्टी परिवे माने शीट गुडा को बनै परिवे. दैट प्रॉपर्टी इज मेलाबिलिटी. ओके जस्ट अ मिनट. वाटर टिके क्लियर. डक्टिलिटी माने कोन थिन वायर रे आपण ड्रॉ करि परिवे एंड मेलाबिलिटी मींस बहुत पतला प्लेट रे आपण जिंस गुडा को बनै परिवे. ओके एबे देखंतु आपण को मु देली एठी गुटे स्टेप्ड बार. ओके टिके सुस लागि गेला. आपण को मु देली एठी स्टेप्ड बार तीनटा बार अछि एठी ऑफ लेंथ L1 लेंथ L2 लेंथ L3. क्रॉस सेक्शन एरिया डिफरेंट अछि डेफिनेटली. एबे एमती हेई पारे कि ये तीनटा अलग अलग मटेरियल रो. ओके दिस थ्री लेंथ्स आर ऑफ डिफरेंट मटेरियल. जदि से डिफरेंट मटेरियल थिबो तो यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी विल बी डिफरेंट फॉर डिफरेंट मटेरियल. बट लेट अस अज्यूम कि ये तीनटा बार जाको ऑफ सेम मटेरियल. ओके मटेरियल इज सेम तो यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी सेम हे जिवो. गेटिंग द पॉइंट. आपण को क्वेश्चन रे सेम यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी देई पारंती और डिफरेंट यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी देई पारंती. क्लियर. तो ता अकॉर्डिंग आपण इक्वेशन लिखिबे.
तो मु जनरल इक्वेशन लिखि दउची ये आई रे देखंतु ये जो डायग्राम मु आपन को देली आई रे जो हमें फोर्स लगेइछु द फोर्स इज पी तो द फोर्स इज कांस्टेंट माने को भी सेक्शन मु कंसीडर करिवि लेट्स सपोज आई एम कंसीडरिंग सेक्शन हियर in this particular member एठी सेक्शन xx मु कंसीडर करिली लेट्स सपोज तो एठी जो मु xx सेक्शन कंसीडर करिली तो हियर द फोर्स इज हाउ मच द फोर्स इज p ओनली ओके एठी देखंतु लेट्स सपोज एठी मु xx सेक्शन कंसीडर करूची एठी भी केते फोर्स केते p ओनली लेट्स सपोज आई एम कंसीडरिंग xx सेक्शन हियर एठी भी केते जो एक्सियल फोर्स अछि p ओनली इट मींस throughout the length of the member I meaning कोन throughout the length of the member the axial force is constant throughout the length of member the axial force is constant clear getting the point so if throughout the length of the member axial force is constant तो आमे Hooke's law को यूज करि परिबा बट एठी जो बार अछि इट इज नॉन प्रिज्मेटिक बट Hooke's law अकॉर्डिंग जो एक्सियल डिफॉर्मेशन आमे काढिथिलु दैट इज फॉर प्रिज्मेटिक बार ओनली तो केमती कैलकुलेट करिबा बस गोटे कंडीशन वैलिड होची आउ कंडीशंस गुडा को वैलिड होनी तो व्हाट आई विल डू मु इंडिविजुअल एक्सियल डिफॉर्मेशन काढिबी बार नंबर 1 रो बार नंबर 2 रो बार नंबर 3 रो overall elongation of this particular bar under force p will be equal to delta 1 let's suppose आप जो elongation मु कैलकुलेट करिली it is your delta 1 this particular elongation is delta 2 this particular elongation is delta 3 तो इंडिविजुअल elongations को मु कैलकुलेट करी ऐड करी देबी दिस इज योर कांसेप्ट दिस इज योर लॉजिक ओके तो देखो तो सो ओवरऑल डेल्टा इज इक्वल टू डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 प्लस डेल्टा 3 मींस देखो तो लोड तो सेम थ्रू आउट द लेंथ ऑफ द मेंबर लोडिंग इज सेम दैट इज लोडिंग इज p ओनली तो p l1 by a1 e1 प्लस p l2 by a2 e2 plus p l3 by a3 e3 एमिति let's suppose same material if same material then आमे कोन p upon e common नहीं जीवा तो delta will be equal to p by e bracket l1 by a1 plus l2 by a2 plus l3 by a3 एमिति आउ जते कि भी मेंबर थिबो एमिति आपण कैलकुलेट करि चलिबे सो दिस इज द फार्मूला दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर योर नॉन प्रिज्मेटिक मेंबर ओके तो मन रखि देबे ये जो मु आपन को एग्जांपल देली इन दिस एग्जांपल द फोर्स इज कांस्टेंट थ्रू आउट द लेंथ ओके फोर्स p इज कांस्टेंट थ्रू आउट द लेंथ ऑफ द मेंबर फोर्स p इज कांस्टेंट लाइक कर दियंतु भाई भौनी माने थ्रू आउट द length okay this condition must be always valid तो p constant next तो नॉन प्रिज्मेटिक रे फर्स्ट मु आपन को बतैली स्टेप्ड बार सेकंड कंडीशन सर्कुलर टैपर्ड मेंबर सर्कुलर टैपर्ड बार सर्कुलर टैपर्ड बार मींस एमिति किछि ये बारटा ही थियो एठी लेट्स सपोज डायमीटर होची d माने d1 लेट्स सपोज एठी डायमीटर होची d2 एठी डायमीटर होची d2 it is subjected to same force p that is force p is constant throughout the length of the bar is l length of the bar is l सो ये केस रे फार्मूला कोन सीधा सीधा एक्सियल डिफॉर्मेशन रो फार्मूला दउची आरो डेरिवेशन करिवा नै भाई द एक्सियल डिफॉर्मेशन इन दिस पर्टिकुलर केस सर्कुलर टेपर्ड बार डेल्टा इज इक्वल टू 4 times pl divided by pi d1 d2 into e very important formula ओके मन रखंतु ये डायग्राम देखंतु सर्कुलर टेपर्ड बार diameter d1 d2 loading is constant throughout the length of the bar okay loading is constant माने loading constant माने को भी सेक्शन एठी मु सेक्शन कंसीडर करिवि कि एठी देखिवि जोटी भी देखिवि axial force will be p only that is throughout the length of the bar the axial force is constant so for this particular bar under this particular load tensile load p the axial elongation
delta will be given as 4 times PL divided by pi d1 d2 into Young's modulus of elasticity of the material. Clear? Very good, Devashish ji. Okay, so this is your case number 2 of a non-prismatic member. Next, बहुत गरम अच्छी. Next, rectangular tapered bar. Case 3. Rectangular tapered bar. Rectangular tapered bar देखंतु केमिति means diagram टा देखिबे. Let's suppose this is the empty अछि. Okay, this is your width B1. Let's suppose width B1 एमिति 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 okay, just a minute. हाँ एमिति डायग्राम टा बुझंतु means एठी width B1 और एठी width B2 हेगला. width change हैला. ठीक अछि, width change हैला. कोटा चेंज हैला width. Length of the bar is, let's suppose this is your length of the bar L. Okay, thickness टा देखंतु आर कांस्टेंट अछि. आर जो भी thickness अछि ये thickness is constant. That is taper होउची taper along width. एठी force P tensile force, ये पटे भी force P लागुथु. force P. आउ जदी 3D रे बनैबी तो देखंतु आउ टिके 3D जदी बनै देबी तो एठी देखंतु एठरू आमे डॉटेड लाइन देखि परिबा एम्ति. तापरे गुटे मिनिट. आ गुटे मिनिट माने इमेजिन तो होउथु ही. ओके, इमेजिन तो होउथु ही. बहुत कष्ट बनैवाटा डायग्राम गुडा को एमिति. ठीक अछि, एमिति. दिस इज योर P loading acting here. तो force is constant along the length. तो ये जो taper है जी tapered along width, tapered along width. बुझा गला कि डायग्राम टा. ओके, तो आर जेतबेला हम डेरिवेशन करू ना गोटे बहुत बड़ा फार्मूला आप में भी आसुची. तो से फार्मूला डायरेक्ट मन रखिथिबे, दैट इज इंपोर्टेंट. ओके, से फार्मूला डा डायरेक्ट मन रखिबे. एंड व्हाट इज दैट पर्टिकुलर फार्मूला? Axial deformation delta is equal to, for this particular case, rectangular tapered bar, delta is equal to PL divided by B2 minus B1 into इडा होची थिकनेस. तो मन रखिथिबे देखंतु ये डायग्राम से पे मु आपन को 3D विजुअलाइजेशन करेली. थिकनेस टा होची कांस्टेंट. एठी भी देखिबे थिकनेस टा कांस्टेंट रहउची ना. T is your constant, thickness is constant. Okay, constant. Thickness of the bar is constant. Width change होउची, tapering होउची along the width. Okay, T is your thickness. तो PL divided by B2 minus B1 into thickness into Young's modulus of elasticity of the material. एतिकी तापरे ln bracket B2 by B1, B2 by B1. Clear? ln bracket B2 by B1. एबे ये B2 देखंतु ये इक्वेशन रो फॉर्मेट देखंतु सब बेले B2 टा बड़टा B1 कोन छोटटा. तो से हिसाब रे ये फार्मूला रे डेटा पुट करी आपण क्वेश्चन सॉल्व करिवे. एबे ये ln को log 10 रे केमती कन्वर्ट करिवा को एमती भी लिखि पारिबा. PL divided by B2 minus B1 into T 2.303 log 10
B2 upon B1. Okay, we can write this particular formula like this also. This is also important formula. Clear? मन रखिथिबे जिंस गुडा को तो एतिकी जाय हे गेला एतिकी जाय हे गेला एबे देखंतु नेक्स्ट तो इटा हे गेला सेकंड केस नॉन प्रिज्मेटिक मेंबर पई आमे देखलु नॉन प्रिज्मेटिक मेंबर भीतर हमरो तीनटा केस थिला फर्स्ट मु आपन को बतैली प्रिज्मेटिक मेंबर पई PL/A तापर मु आपन को बतैली नॉन प्रिज्मेटिक मेंबर पई डेल्टा तारे तीनटा केस स्टेप्ड बार क्लियर तापर सर्कुलर टेपर्ड बार रेक्टेंगुलर टेपर्ड बार ठीक अछि एबे जाय हमें जते भी देखिलु थ्रू आउट द लेंथ ऑफ द मेंबर द फोर्स इज कांस्टेंट ओके थ्रू आउट द लेंथ ऑफ द मेंबर द फोर्स वाज कांस्टेंट एबे नेक्स्ट देखियो हमें कंपोजिट मेंबर मींस लेट्स सपोज वी हैव ए बार आइरे दुईटा अलगा अलगा मटेरियल को ऐड करी हमें बारटा बनैछु ओके सो कंपोजिट मेंबर देखंतु सो फॉर कंपोजिट मेंबर इक्वेशंस गुडा को हमें केमति लिखिबा नेक्स्ट केस this is your case number 3 case 3 composite members ओके देखंतु एमिति किछि मेंबर अछि एरी एरी गुड मिनिट एमिति किछि मेंबर अछि लेंथ दुईटार सेम ओके अरे गुड ठीक अछि चलिबो किछि ना ये पटे गुटे प्लेट अछि ओके आ ये पटे गुटे प्लेट अछि जो कंडीशंस मु बताउछि सेमिति विजुअलाइज करिवे आइरे फोर्स जो लागी छी P P टेंसाइल लोडिंग P लागी छी लेंथ ऑफ द मेंबर इज L ओके लेट्स सपोज ऊपर जो मेंबर अछि A1 our cross section area Young's modulus of elasticity is E1 A2 E2 एठी तो मटेरियल डिफरेंट ही ना दिस इज अ कंपोजिट मेंबर तो डिफरेंट मटेरियल्स रो मेंबर टा एठी रेडी हेछि एबे देखंतु आ पई जो इक्वेशंस गुडा को हमें लिखिबा सो इक्वेशंस कोन कोन लिखिबा सुनंतु विजुअलाइज करिवे जिंस गुडा को बहुत सिंपल बहुत इजी स्ट्रक्चर टाको मेंबर टाको देखि करी आपण निज माइंड पुट करंतु ये जो लोडिंग हमें पी लोडिंग लगैछु देखंतु केमति अछि मेंबर टा माने गोटे ऊपर स्टील अछि लेट्स सपोज आ तळे काठ अछि एमति हे पारे ऊपर कोन अछि स्टील अछि तळे काठ अछि लेट्स सपोज से स्टील रो सेम लेंथ रो आ काठ रो सेम लेंथ रखा हिच एमति दुईटा प्लेट मझी रे एमति विजुअलाइज करंतु तापरे हमें से प्लेट थ्रू रु लोडिंग पी आ ऊपर अप्लाई करिछु किशोर चंद्र पृष्टि जस्ट ए मिनट पर कथा हेबा के की ओके जस्ट ए मिनट सॉरी फोन आसी जाउची ना केबे केबे तो देखंतु तो आमे ये पटे पी लोडिंग अप्लाई करिछु ये पटे पी लोडिंग अप्लाई करिछु तो मते कुहंतु एठी तो दुईटा मटेरियल डिफरेंट स्ट्रेंथ रो थिला सिंपली एमति बुझंतु तो डिफरेंट स्ट्रेंथ रो मटेरियल अछि तो से ये पी लोडिंग रो तांकर निजो कंट्रीब्यूशंस भी अलग अलग थिबो ना जेमिति जार स्ट्रेंथ सेमिति से लोड टाकू कैरी करिवो जेमिति स्टील रो स्ट्रेंथ टिके बेसी अछि तो स्टील टिके बेसी लोड कैरी करिवो ये पी रो ओ काठर स्ट्रेंथ टिके कम अछि तो डेफिनेटली ये जो ओवरऑल पी लोडिंग रो काठ टिके कम स्ट्रेंथ कैरी करिवो माने ये जो पी लोडिंग अछि इक्वेशन 1 हमें फर्स्ट इक्वेशन एमति लिखिबा ये जो ओवरऑल पी लोडिंग अछि इट विल बी डिवाइडेड एज P1 plus P2 that is loading carried by material 1 plus loading carried by material 2 सेकंड इक्वेशन हमें कोन लिखिबा देखंतु दुईटा मटेरियल रो लेंथ तो सेम तो फॉर कंपैटिबिलिटी कंडीशन जते बडे इलोंगेशन हेबा देखंतु कंपैटिबिलिटी कंडीशन एठी मु कोन कहली कंपैटिबिलिटी कंडीशंस दुईटा मटेरियल रो लेंथ सेम अछि तो लोडिंग आपण अप्लाई करिसंती P ओके तो जते बडे इलोंगेशन हेबा कथा दुईटा मटेरियल रो तो सेम लेंथ रो इलोंगेशन हेबा कथा the elongation must be same for the both the material so this is called as compatibility conditions amane kono let's suppose I रे elongation hela delta 1 I रे elongation hela delta 2 तो compatibility condition means ये delta 1 must be equal to delta 2 this is your equation number 2 तो delta 1 must be equal to delta 2 माने कोन देखंतु p1 l1 ठीक अछि अच्छा l1 तो नहीं both रो लेंथ सेम तो p1l divided by a1 e1 must be equal to P2 into L divided by A2 E2
एमिति आमे ये इक्वेशन टाको लिखि परिबा सो हम पाखरे दुईटा इक्वेशन अछि इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 एंड ताको इक्वेशन 2 को मु एमती एक्सपेंड करिली नाउ लेट्स सपोज कि आपन को क्वेश्चन रे दिया आइथियो एठी लेट्स सपोज कि आपन को ओवरऑल ये p वैल्यू दिया आइछि ओके ये p वैल्यू दिया आइछि आपन को p1 और p2 कैलकुलेट करिया पय कहिछि तो ये जो डेल्टा वाला इक्वेशन लिखिले फ्रॉम दिस पर्टिकुलर इक्वेशन आमे कोन लिखि परिबा आमे लेट्स सपोज कि मु लेखुछि ये p1 रो वैल्यू ये p1 वैल्यू मु कैलकुलेट करि परिबी केमिति p1 will be equal to केमिति लिखिबी p2l divided by a2 e2 रहिबो ऊपर पटे पळेबो a1 e1 ठीक अछि आ तळे आसी जो आउथरे l तो p1 will be equal to simply how much p2 okay a1 e1 divided by a2 e2 एमिति एमती हम लिखि परिबा तो ये जो p1 रो वैल्यू हमें एबे लिखिलु ये p1 रो वैल्यू ये इक्वेशन 1 रे पुट कर देले सीधा p2 रो वैल्यू बाहरी जीव ना नहीं कैलकुलेट हे जीव आराम रे इजीली यस और नॉट कोटा इटा फिक्स अछि हां बिल्कुल डेफिनेटली माने देखंतु ये जो मेंबर अछि दिस इज ए कंपोजिट मेंबर माने दुईटा प्लेट अछि वी हैव ए टू प्लेट एमती बुझंतु वी हैव ए टू प्लेट ये दुईटा प्लेट मझिरे ये दुईटा मेंबर अछि अलगा अलगा नेचर रो आ ये दुईटा मेंबर मझिरे बॉन्डिंग बहुत बढ़िया से हेछि कंपोजिट मेंबर सेते ही कहबा ना माने बॉन्डिंग बहुत बढ़िया से ही थियो माने ऊपर वाला मेंबर और तळ वाला मेंबर को बढ़िया से गम वम लगै कर हमें पूरा भल से फिक्स करी थिवा अटैच करी थिवा ओके ताहेले तो आको हमें कंपोजिट मेंबर कहिवा आ ये दुईटा प्लेट मझिरे रखा हेछि माने लेट्स सपोज कि एपटे गुटे लुहार प्लेट लगे देले एपटे गुटे लुहार प्लेट लगे देले ओके से प्लेट थ्रू हमें लोडिंग दोछु ऑन दिस ओवरऑल कंपोजिट मेंबर गेटिंग द पॉइंट एमती ही पारे किछि भी तो ये सब इक्वेशंस गुडा को मु आपन को बतैली तो आई रे ये जो सेकंड इक्वेशन थिला दिस पर्टिकुलर सेकंड इक्वेशन दिस इज ओनली कॉल्ड एज कंपैटिबिलिटी कंडीशंस कंपैटिबिलिटी इक्वेशन कोन पाई कंपैटिबिलिटी इक्वेशन माने कोन कंपैटिबिलिटी इक्वेशन रो मु आपन को लॉजिक बतैथिली ठीक है केते बेले जतबे ट्रेस पढुथिली तो सेठी मु लॉजिक कोन दैथिली स्ट्रक्चर टा को देखि करी आमे इक्वेशन डिसाइड करिवा in terms of slope and deflection तो एठी axial deflection of the both member must be same ये जिनसोटा मते जणा अछि so delta 1 must be equal to delta 2 तो this became your compatibility condition तो एठरो मु ये फोर्सेस गुडा को काडी करी माने केमति भी ये इक्वेशंस गुडा को यूज करी जो भी मते कैलकुलेट करिया दरकार पड़ियो माने जो भी क्वेश्चंस रे पचारियो आई कैन इजीली कैलकुलेट इक्वेशंस गुडा को उठर देखि नियंतो एमिति इक्वेशंस गुडा को हम लिखि पारिबा गेटिंग द पॉइंट आपन को p1 कैलकुलेट करिया पय कहिबे कि p2 कैलकुलेट करिया पय कहिबे किछि भी आपन कैलकुलेट करि परिबे डेल्टा 1 कैलकुलेट करिया पय कहिबे तो p1 कैलकुलेट करिया अछि p1 l डिवाइडेड बाय a1 e1 और डेल्टा 2 दरकार ओके तो डेल्टा 1 मस्ट बी इक्वल टू डेल्टा 2 एमिति गेटिंग द पॉइंट ओके ये टाइप तो दिस इज योर कंपोजिट मेंबर ओके मु आपन को देखै दउछ आउथरे जेमति ये p1 रो वैल्यू हम एठी कैलकुलेट करिलु तो ओवरऑल से ऊपर वाला इक्वेशन p इक्वल टू p1 प्लस p2 थिला तो p1 जगह रे ये वैल्यू पुट करि दियंतु तो p2 a1 e1 डिवाइडेड बाय a2 e2 प्लस p2 तो एठु मु जदी कॉमन नै जीवी p2 तो मो रहिबो कोन 1 प्लस a1 e1 डिवाइडेड बाय a2 e2 गोटे मिनिट डिवाइडेड बाय a2 e2 आकु टिके सिंपलीफाई करबी तो ये इक्वेशन केमति लिखि परिबी p2 a2 e2 प्लस a1 e1 डिवाइडेड बाय a2 e2 एमति लिखि परिबी एमति लिखिली तो आई रु मु ये p2 वैल्यू कैलकुलेट करि नेबी ना तो p2 विल बी इक्वल टू व्हाट p into a2 e2 डिवाइडेड बाय a2 e2 प्लस a1 e1 एमिति मु p2 कैलकुलेट करि परिबी दिस इज योर फाइनल इक्वेशन और जस्ट इक्वेशन सहित खेलिबार अछि आउ किछि नै ओके इक्वेशन सहित खेलिबार अछि ये सब फार्मूला मन रखिले हेबो नै जस्ट लिखिबार अछि खेलिबार अछि ओके एमिति एबे मु सेम पैटर्न जेमति ये p2 लिखली सेमिति ये इक्वेशन को देखि करी p1 मु लिखि परिबी p1 विल बी इक्वल टू p into देखंतु एठी ऊपर a2 e2 अछि तो एबे p1 जदी मु कैलकुलेट करिया को जिबी तो a1 e1 आसी जिवो ऊपर आउ किछि आसीबो नै a1 e1
P into A1 E1 divided by P A2 E2 plus A1 E1 तଳ डिनोमिनेटर सेम रहिबो A2 E2 plus A1 E1 yes or not एमिति मु P1 भी कैलकुलेट करि परिबी तो P1 कैलकुलेट हे गेला P2 कैलकुलेट हे गेला तो डेल्टा 1 भी कैलकुलेट हे जीवो डेल्टा 1 कैलकुलेट हे गेला डेल्टा 2 कैलकुलेट करिले व्हिच इज इक्वल टू डेल्टा 2 इडा तो पूर्वरु आमे लिखिथिलु तो ये सब जिनस गुडा को यूज करी माने ये टाइप मेंबर्स को एमती ये सब इक्वेशंस गुडा को यूज करी आपण सॉल्व करिवे बस ये दुईटा इक्वेशन कुकुडा P1 P ओवरऑल फोर्स P इक्वल टू P1 प्लस P2 जार जेति की स्ट्रेंथ ता हिसाब रे से लोड कैरी करियो एंड compatibility condition that is overall deflections must be common overall deflections must be same clear getting the point very simple very easy next तो इडा हे गेला आपण रो केस नंबर 3 नाउ केस नंबर 4 axial deformation आमे एबे पढुछु ओके तो केस नंबर 4 very important again elongation due to self weight elongation due to self weight okay self weight तो आए रे लेट्स वाज फर्स्ट केस कि देखंतु एबे elongation due to self weight कैलकुलेट करूची एबे जाई जो elongation आमे कैलकुलेट करिलु मेंबर्स ऊपर गोटे फोर्स लगै को रखिथिलु P और P फोर्स है ना ये फोर्स लगै को रखिथिलु एबे आमे फोर्स लगैवानी elongation due to self weight लेट्स सपोज कि गोटे सपोर्ट अछि ये सपोर्ट रो गोटे बार लटकुछि माने गोटे बार सा एंती झुल्ली करी अछि लेट्स सपोज लटकी करी अछि लेंथ ऑफ द बार इज L length of the bar is L ठीक अछि let's suppose W is capital W it is total weight of the bar total weight of the bar एबे ये जो बार अछि एडा किछि भी हेई पारे एडा सर्कुलर हेई पारे रेक्टेंगुलर हेई पारे क्रॉस सेक्शन एरिया जेमति किमति भी आपन को देई पारंती और स्क्वायर हेई पारे ओके तो ता हिसाब रे आपन कंसीडर करिवे किछि भी क्रॉस सेक्शन एरिया हेई पारे तो आपन को क्रॉस सेक्शन एरिया जदी सर्कुलर देछि एरिया π/4 d स्क्वायर रेक्टेंगुलर देछि तो b d स्क्वायर देछि तो b स्क्वायर ओके एमति आपन कैलकुलेट करि परिबे क्रॉस सेक्शन एरिया तो लेट्स सपोज a इज योर क्रॉस सेक्शन एरिया ठीक अछि नाउ लेट्स सपोज गामा इज योर यूनिट वेट ऑफ द मटेरियल यूनिट वेट ये यूनिट वेट माने कोन वेट पर यूनिट वॉल्यूम वेट पर यूनिट वॉल्यूम सब जगह पढ़ी छी सोम रे सॉइल रे सब जगह ये यूनिट वेट विषय आपन को मु बतै छी वेट पर यूनिट वॉल्यूम तो एबे देखंतु एबे हमकु ये केस रे हुक्स लॉ को अप्लाई करियार अछि ना कोन अप्लाई करियार अछि हुक्स लॉ हमें हुक्स लॉ रो एप्लीकेशन पढुछु तो हुक्स लॉ को अप्लाई करियार अछि तो मते जणा हुक्स लॉ रो कंडीशन कोन मटेरियल मस्ट बी होमोजेनस आइसोट्रोपिक ये सब तो चलंतु ये मटेरियल होमोजेनस अछि आइसोट्रोपिक अछि सब अछि क्लियर सेकंड कंडीशन कोन लोडिंग मस्ट बी कांस्टेंट लोडिंग मस्ट बी कांस्टेंट मेंबर मस्ट बी प्रिज्मेटिक चलंतु इडा सर्कुलर और रेक्टेंगुलर किछि भी हे पारे क्रॉस सेक्शन तो थ्रू आउट द लेंथ क्रॉस सेक्शन कांस्टेंट अछि प्रिज्मेटिक ठीक अछि तो एटी प्रिज्मेटिक वाला कंडीशन वैलिड होउची मटेरियल आइसोट्रोपिक होमोजेनस ये सब कंडीशन वैलिड होउची ओके नो प्रॉब्लम बट लोडिंग वैलिड होनी ना लोडिंग वाला कंडीशंस एबे देखंतु सेल्फ वेट केमति एक्ट करिवो सेल्फ वेट माने निजर वेट को पटे एक्ट करूची डाउनवर्ड साइड एक्ट करूची इन द डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटी सेल्फ वेट कोठी एक्ट करूची इन डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटी एक्ट करूची ना तो एबे जदी हम टिके देखिवा भल से देखिवा लेट्स सपोज कि मु आपन को कहिबी पचारिबी कि लेट्स सपोज बाबू ये जो सेक्शन अछि देखंतु भल से देखंतु एठी मु गुटे एक्स एक्स सेक्शन डिसाइड करूची एटा गुटे एक्स एक्स सेक्शन डिसाइड करिली ये जो एक्स एक्स सेक्शन डिसाइड करिली ये सेक्शन ऊपरे केते की पोर्शन रो सेल्फ वेट एक्ट करूथबो देखंतु माने ये जो एक्स एक्स सेक्शन अछि एठी लेट्स सपोज एठी सेल्फ वेट एक्ट करिवो ओके एठी सेल्फ वेट एक्ट करिवो ये एक्स एक्स सेक्शन रे सेल्फ वेट गुटे एक्ट करूची लेट्स सपोज दैट पर्टिकुलर सेल्फ वेट लोडिंग ड्यू टू सेल्फ वेट इज wx तो ये जो wx अछि एक्स एक्स सेक्शन रो तळे जो मेंबर अछि ये फर्स्ट पार्ट रो और एक्स एक्स सेक्शन रे ऊपर जो मेंबर अछि सेकंड पार्ट कार वेट तळ रो वेट ना ऊपर वाला रो वेट ये आंसर मते कहंतु
जदि ये आंसर आपण करि देले तो विजुअलाइजेशन हे गेला आपण रो लाइक कर देबे भाई भौनी माने एनी कमेंट तळ बड़ा ये माने फर्स्ट पार्ट रो वेट टा से WX और सेकंड पार्ट रो वेट टा 1 और 2 एमती कमेंट करंतु सब्सक्राइब करि नियंतु एनीवन नो कमेंट ऊपर पार्ट ऊपर अरे गुरु देखंतु जस्ट एठी विजुअलाइजेशन मिसेला गुरुजी एमिति ठीक अछि लेट्स सपोज दिस इज द बार एमिति ये बार टा लटकुछ ठीक अछि मु एठी गुडे सेक्शन कंसीडर करूछ ये जगह रे एठी तो ये जगह रे जो लोडिंग टा लागिव तळकू सेल्फ वेट तो या तळे एति की जो ये जो पोर्शन रो मटेरियल अछि आर ही तो वेट ये जगह रो तळ पटे एक्ट करिवो एति की पोर्शन रो वेट ये जगह रो तळ पटे एक्ट करिवो गेटिंग द पॉइंट विजुअलाइजेशन हैला बस सेमिति ओके तो डाउन मींस दिस पार्ट नंबर 1 रो ओके तो तो ये केस रे हुक्स लॉ को वैलिड करे पय हमें बेसिकली कोन करूछु आई एम कंसीडरिंग ए एलिमेंट मु गुटे आरो डेरिवेशन रो प्रोसेस जदी मु बतेबी मु गुटे एलिमेंट कंसीडर करिवि लेट्स सपोज दिस पर्टिकुलर एलिमेंट इज ऑफ dx लेंथ ठीक अछि ये गुटे छोटो एलिमेंट ता कंसीडर करिली एबे ये एलिमेंट को बाहर को काढुछि ये जो एलिमेंट मु कंसीडर करिली लेट्स सपोज आकु गुटे बार बोली एज्यूम करंतु जारो लेंथ होछि dx और आ ऊपर वेट एक्ट करूछि कोन सेल्फ वेट wx तो ये जो सेल्फ वेट wx एबे एक्ट करूछि लेट्स सपोज दिस पर्टिकुलर लेंथ एट्रू ये फ्री एंड ये पर्टिकुलर लेंथ दिस लेंथ इज योर x तो आरो सेल्फ वेट ता कोन हेबो देखंतु सेल्फ वेट ये wx रो वैल्यू जदी मु लिखिबी यूनिट वेट ऑफ मटेरियल अपन को जणा इनटू वॉल्यूम लिखि देले सेल्फ वेट आसी जीवो तो वॉल्यूम कोन क्रॉस सेक्शन एरिया a इनटू x एमती हम लिखि परिबा दिस विल बी योर wx वैल्यू तो ये जो wx लोडिंग अछि ये तो ये एलिमेंट ऊपर कांस्टेंट एक्ट करूछि ना प्लस ये एलिमेंट प्रिज्मेटिक अछि होमोजेनस अछि आइसोट्रोपिक अछि तो एबे मु ये एलिमेंट पाई एलिमेंटल इलोंगेशन डेल्टा माने d डेल्टा x एलिमेंटल इलोंगेशन लिखि परिबी तो एलिमेंटल इलोंगेशन विल बी इक्वल टू wx into l pl by ae तो लोड केते wx लेंथ केते dx by ae a into e एमती लिखि परिबी आकु टिके रीअरेंज कर देबी भल से डेटा गुडा को फिट कर देले ये इक्वेशन ता आसी जिवो समथिंग गामा ax dx डिवाइडेड बाय ae तो एठु देखंतु ये एरिया एमती भी कटि जिवो तो रोहिला कोन एलिमेंटल इलोंगेशन डेल्टा dx will be equal to gamma x dx divided by e तो दिस इज योर एलिमेंट इलोंगेशन माने से जो dx एलिमेंट मु कंसीडर करिली तार इलोंगेशन ड्यू टू सेल्फ वेट जते बेले मते ओवरऑल इलोंगेशन काढिवार अछि टोटल लेंथ पई ओके तो मु कोन करिवि ये एलिमेंटल इलोंगेशन एबे मु फाइंड आउट करिछि तो ओवरऑल इलोंगेशन मते दरकार देन आई विल इंटीग्रेट दिस पर्टिकुलर वैल्यू फ्रॉम 0 टू l इंटीग्रेट कर दवा 0 टू l तो इंटीग्रेशन परे देखंतु गामा तो कांस्टेंट इटा बाहर को आसी जिवो e भी कांस्टेंट बाहर को आसी जिवो x² 2 दिस इज योर इंटीग्रेशन तो रोहिला कौन गामा l स्क्वायर बाय 2e दिस इज द इलोंगेशन ड्यू टू सेल्फ वेट ये फॉर्मूला गामा l स्क्वायर बाय 2e इलोंगेशन ड्यू टू सेल्फ वेट इलोंगेशन ड्यू टू सेल्फ वेट क्लियर दिस इज द फॉर्मूला बुझिले कि एबे देखंतु ये जो इलोंगेशन ड्यू टू सेल्फ वेट हमें देखिलु ओके आई रे क्रॉस सेक्शन एरिया आछिला कि ना क्रॉस सेक्शन एरिया तो पूर्वरु कटि गला आ माने कोन हमें सीधा सीधा गोटे पॉइंट कहि परिबा कि इलोंगेशन ड्यू टू सेल्फ वेट इज इंडिपेंडेंट ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द मटेरियल ऑफ द मेंबर
It do not depend on the cross section area. It is independent of cross section area of the member. आम एमती कहि परिबा. This is a point. आपन को एग्जाम रे पचारिबे. Okay. Elongation due to self weight is independent of cross section area of the member. Clear? It only depends on basically length of the member. Length of the member ऊपर depend करूची. Okay. Length of the member ऊपर depend करूची. But जदि मु in terms of cross section area ये formula को arrange करिवि. Okay. I can also arrange this particular formula in terms of cross section area. केमिति देखंतु ये delta equal to कोन आसीतला gamma L square divided by 2e. This is the value. आकु जदि arrange करिया तुम कोन करिवि किछि करिवि नाही. What I will do, I will multiply cross section area. ओके ऊपर आउरी तळे मल्टीप्लाई करिवि डिवाइड करिवि. तो लेट्स सपोज आई एम डूइंग गामा L स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2e माने ए पाखरे एठी करि दउची ना एठी करि दउची. देखंतु मु ऊपर गोटे एरिया तळे गोटे एरिया किछि फरक पडिबो कि किछि फरक पडिबो नाही. टिके अरेंज करिया तापरे गामा इनटू L लिखि देबा तापरे ए लिखि देबा तापरे रहिबो कोन आउथरे L रहिबो तळे कोन रहि गेला 2ae. तो एबे देखंतु व्हाट इज दिस पर्टिकुलर वैल्यू overall gamma L into A. This is your total weight of the member W. Hence ये जो formula अच्छी ये formula को आपण एमती भी को बही रे देखिवे it is total weight of the member W L okay divided by 2 times AE. ये formula भी आसुची. So ये formula को देखि करी केते जण पिला कंफ्यूज हे जाउछंती. Okay get confused कि ना 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 elongation due to self weight also depend on प्रीलिम्स रो टेंटेटिव डेट. प्रीलिम्स रो तो जून रे हबो जून ओके प्रीलिम्स जून. तो elongation due to self weight also depend on what cross section area. तो एठु कंफ्यूज हेबनी एटा तो हमें फार्मूला टाको मॉडिफाई करिलु अरेंज करिलु. सो elongation due to self weight do not depend on cross section area. It is independent of cross section area. ये फैक्ट आपण मन रखिथिबे. ओके तो जेमिति हमें ये elongation due to self weight for a prismatic bar ओके सीधा सर्कुलर ही पारे कि किछि भी पारे तापर हमें कैलकुलेट करिलु. एमती आ गुटे क्वेश्चन आसुची elongation due to self weight only in case of what conical member. ओके तो से फार्मूला देखिबा. लेट्स लुक दैट पर्टिकुलर फार्मूला. अच्छा आई रे देखंतु आ गुटे जिंसो हमकु एठी फार्मूला पचारंती सीधा कोन गोटे नोट रे बुझंतु फर्स्ट ये फार्मूला भी देखंतु. देखंतु लेट्स सपोज गोटे बार अछि सेम बार ऑफ सेम लेंथ सेम क्रॉस सेक्शन एरिया सेम मटेरियल लेंथ इज सेम. आ गोटे बार ये पटे लगेली सेम बार ओके सेम बार लेंथ इज सेम क्रॉस सेक्शन एरिया सेम एवरीथिंग सेम सेम कंडीशन. मु कोन करिली देखंतु जो भी ये बार रो सेल्फ वेट अछि ओके टोटल लोड केते W टोटल लोड इज W. सो से टोटल लोड W को मु लगे दउची एठी as a at this particular free end W by 2 okay W by 2 मु लगे देली. now means what is this particular W total weight of the bar total just a minute हाँ हेलो हम्म तुम्ही किरण क्या बता फोटो मिली तो अरे मैं तो सुना तो अरे एक काम कर सुना तो 15-20 मिनट आधा घंटा में माझी घरी में हमारे यहाँ आविष्य तो लेखा भी हाँ तो हम फोन करो आधा घंटा में रुका हम फोन करो ठीक ओके. वेल सॉरी गाइस ये मम्मी मंदिर पड़ी छंती माँ तो तांको व्हीकल मिलुनी ओके सो मते डाकुथिले तो टिके ये पोर्शन टा मु कंप्लीट करि दउची ओके देन आई विल गो. कोनिकल बार ये सब एप्लीकेशन हमें कंप्लीट करि दवा.
ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ तो मु कोन बुझौतली कि लेट्स सपोज दिस इज द टोटल वेट ऑफ बार ओके टोटल वेट ऑफ बार नाउ एबे लेट्स सपोज आरो हाफ लेंथ रे फर्स्ट कंडीशन रे मु कोन करिवि हाफ लेंथ रे सेम लोडिंग लगेबी w एठी ओके एट l/2 तो जो एक्सियल डिफॉर्मेशन आपण पाइबे ना ये बोथ केसेस है दिस इज केस 1 दिस इज केस 2 द एक्सियल डिफॉर्मेशन विल बी सेम the axial deformation will be same that is ये केस रे भी जदी हमें डेल्टा लिखिबा डेल्टा it will be equal to wl divided by 2 times a देखन तो pl by a ओके तो p टा कोन w by 2 l by a नाउ ये केस रे भी p टा कोन w l टा कोन l by 2 तो ये केस रे भी डेल्टा will be equal to wl by 2 times a the axial deformation will be same तो ये गुटे नोट आसुची एटा मन रखि दिबे ओके ये नोट ता गुटे आसुची तो ये नोट मु लिखि दउची ये डायग्राम थ्रू आपन को बुझेई देली तो व्हाट इज दिस पर्टिकुलर नोट बेसिकली the elongation the elongation of the prismatic bar of length L and cross section area A due to self weight is equal to elongation caused by a force W acting by a force W by 2 acting at the bottom fiber at the bottom fiber of same prismatic bar by neglecting the self weight ठीक अच्छे और आपको आम एमती भी लिखि पारिबा और ए फोर्स W applied at CG of the same prismatic bar by neglecting its self weight ये नोट्स मु प्रोवाइड करी देबी रिवीजन वाला आपण मान समस्त को ओके तो ये जिंसटा मन रखिथिबे तो मु कोन कहली देखंतु बेसिकली देखंतु आमे ये फार्मूलाटा कैलकुलेट करिथिलु ना बे दिस इज व्हाट दिस इज आल्सो डेल्टा ड्यू टू सेल्फ वेट ओके दिस इज आल्सो डेल्टा ड्यू टू सेल्फ वेट तो मु एबे कोन करिली कि जेति कि आरो सेल्फ वेट अछि ओके ये मेंबर जेति कि भी सेल्फ वेट अछि सेति कि वेट मु कैलकुलेट करिली एंड लेट्स सपोज आई एम अप्लाइंग ए लोड ऑन द सेम बार आई एम अप्लाइंग ए एक्सियल लोड w by 2 तो ये एक्सियल लोड w by 2 जो फ्री एंड रे अप्लाई करिली दिस इज केस 1 आज को डेल्टा केते एते आसे जीवो सेकंड केस रे मु कोन करिली एक्सियल लोड w ओके केते तार सेल्फ वेट इक्वल ये बार रो l/2 रे अप्लाई करिली ना तो एठी कोठी cg थिबो cg ऑफ द बार तो एठी अप्लाई करिली तो आज को जो डेल्टा आसुची सेम वैल्यू आसुची व्हिच इज इक्वल टू व्हाट deflection due to self weight wl by 2a which is equal to deflection due to self weight wl by 2a getting the point ये जिंसोटा है तो ये जिंसोटा एग्जाम रे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पचारंतु ये थियोरेटिकल क्वेश्चन हेगला सोम रो okay it is a type of theoretical question in strength of material they will ask you next condition elongation due to self weight of a conical bar elongation due to self weight of a conical bar
ओके कोनिकल बार मींस लाइक दिस एमती किछि बारटा अछि हम पाखरे कोनिकल बार कोन शेप रो आइसक्रीम खाउछन्ते ना से शेप रो लेट्स सपोज ये कोनिकल बार रो लेंथ होछि l तो आर इलोंगेशन हमको कैलकुलेट करियार अछि अच्छा वॉल्यूम ऑफ कोन हमें केमते लिखि परिबा लेट्स सपोज ये जो कोनिकल बार अछि आर रेडियस ओके रेडियस एठी रेडियस होछि आर तो आर वॉल्यूम जते बेला अपन लिखिबे ना इट विल बी पाई बाय 3 r square into l एमती लिखिबे this is your volume of the this particular conical bar okay हाँ जस्ट ये कोनिकल बार वाला मु बतई दउछि ना आपरे पळेबी ओके कोनिकल बार वाला बतई दउछि खत्म हे जिवो सरै दउछि मम्मी कहि देछि टिके 15 मिनिट मंदिर आका बसंतु मु आसुछि बोली तो देखंतु लेट्स सपोज गामा इज द यूनिट वेट ऑफ दिस पर्टिकुलर मटेरियल इट इज योर यूनिट वेट इट इज योर यूनिट वेट क्लियर एबे देखंतु तो कोनिकल बार इलोंगेशन डेल्टा जते हम कैलकुलेट करिवा इट इज इक्वल टू 1/6 ऑफ गामा l square by e this is the formula okay that is elongation due to self weight of a conical bar how much 1/6 gamma l square by e 1/6 gamma l square by e clear getting the point amane kono एटा तो कोनिकल बार एबे जदि मु कंपेयर करिवि एज कंपेयर टू प्रिज्मेटिक बार कंपैरिजन तो देखंतु लेट्स सपोज दिस इज योर कंपैरिजन कोन डेल्टा प्रिज्मेटिक बाय डेल्टा कोनिकल जदि ये रेशियो काढिबा हमें तो डेल्टा प्रिज्मेटिक कोन थिला गामा l स्क्वायर बाय 2e एटा केते आसिला गामा l स्क्वायर बाय 6e दिस विल बी योर रेशियो तो रेशियो रे कोन आसी जिवो रेशियो रे आसी जिवो देखंतु इट विल बी 6/2 okay तो delta prismatic by delta conical will be equal to 6/2 means 6/2 means 3 इटा आसी जो ये वैल्यू ओके तो ये वैल्यू आसी गला माने कोन हम एमती लिखि परिबा ना डेल्टा प्रिज्मेटिक इज इक्वल टू 3 टाइम्स डेल्टा कोनिकल माने कोन ड्यू टू सेल्फ वेट को टाइप बार रे डिफ्लेक्शन और इलोंगेशन बेसी होची प्रिज्मेटिक बार आई रे डेल्टा इज more delta prismatic is greater than delta conical due to self weight clear getting the point बुझा जाउची काई रे बेसी आइला प्रिज्मेटिक बार रे तो ये जिंस आपन को पचारिवे ये रेशियो एग्जाम रे पचारंती ओके दिस इज इंपोर्टेंट रेशियो तो ये रेशियो विषय आपन को एग्जाम रे पचारिवे सो इटा थिला आपन रो एप्लीकेशन ऑफ हुक्स लॉ ओके दिस इज योर एप्लीकेशन ऑफ हुक्स लॉ तो आगु को प्रोसीड करिया हमें कंटिन्यू करिया मु आजी आउरी बतई थांती ये सब जिंस मु नै को आसे छी आपन गोटे थरो मु आपन को एठी देई दउची देखंतु ये वीडियोटा आपन पढिबे ओके जो थ्योरेटिकल पोर्शन अछि मु लाइव सेशन जेमती एंड करिवि तापर ये जो थ्योरेटिकल पोर्शन मु आपन को एबे देखौची ये जिंस ऊपर पढिबे फैटिग स्ट्रेंथ अछि ठीक अछि फैक्टर्स अफेक्टिंग फैटिग तापर किछि किछि डेफिनेशंस गुडा अछि जो कि आपन पढिबे तो देखंतु मु स्ट्रीमिंग करि दउची दिस इज योर फैटिग स्ट्रेंथ आकु पढिबे रीड करिवे ओके आकु रीड करिवे this is your fatigue strength this is your fatigue strength this is your endurance limit ओके तापर एठी अछि क्रीप अछि इंपैक्ट लोड विषय अछि यील्ड स्ट्रेंथ विषय अछि ये सब थ्योरी गुडा को पढिबे सोम रो जो क्वेश्चंस गुडा का आइबो तारे ये सब थ्योरेटिकल क्वेश्चंस गुडा को पचारि पारंती ठीक अछि फैटिग स्ट्रेंथ ऊपर देखैली कंटेंट देखंतु वीडियो पॉज करी आपण पढिबे ओके endurance limit ये सब सेकंड स्लाइड वीडियो पॉज करी आपण पढिबे जिंस गुडा को नेक्स्ट ये डेफिनेशंस गुडा को वीडियो पॉज करी पढिबे ओके पढिबे ईमानदारी से पढिबे ये सब जिंस आपण को जणा जस्ट पढिबे एज अ रिवीजन हे जिवो वीडियो पॉज करी पढिबे
इट इज वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो पॉज करी पढ़िए नेक्स्ट क्रीप 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 ऊपर तो सब बड़ा ये सब डेफिनेशन ऊपर क्वेश्चन आसे ओके तो ये सब डेफिनेशंस गुडा को आपण पढ़िए तो एबे देखंतु ए वीडियो पॉज करी पढ़िए तो एबे जो आमे रिवीजन रे पहुंचिलु ये हमरो एबे जो स्ट्रेस स्ट्रेन वाला टॉपिक ऊपर आमे रिवीजन करूछु दिस इज टाइप ऑफ रिवीजन रिवीजन कोन गो टाइप रो पाठ ही गेला ओके बट हेले भी एबे आउ गुटे फार्मूला आसीबो द एक्सियल डिफॉर्मेशन ड्यू टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस ओके ड्यू टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस तो से गुटे फार्मूला मु आपन को बतैबी एक्सियल डिफॉर्मेशन ड्यू टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस तापर माने रिवीजन करला परे किछि किछि क्वेश्चन प्रैक्टिस करिया ओके माने ये चैप्टर जेमति रिवीजन मु करैबी तो ये चैप्टर रिवीजन करैला परे मु एमसीक्यू सेशन नै को आसीबी नहीं नहीं ये चैप्टर नहीं अप टू प्रिंसिपल स्ट्रेस जते मु सरै देबी ना तापर एमसीक्यू सेशन नै को आईबी स्टार्टिंग रो माने ये थ्योरेटिकल वाला पोर्शन तापर शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम तापर ये स्ट्रेस स्ट्रेन वाला टॉपिक रो ओके तापर प्रिंसिपल स्ट्रेस स्ट्रेन रो ये सब पोर्शन रो हमें गोटे सेट गोटे 2-3 टा क्वेश्चन हमें सॉल्व करि देबा after solving that we will move to second set of revision ओके सेकंड माने पाखापाखी मु ये जो सोम रो ये सब जो एबे रिवीजन क्लासेस ये सब मु रोल आउट करिवि ये पाखापाखी 10 to 15 आवर्स मझिरे ये गुटे रिवीजन गुटे क्विक क्रैश कोर्स टाइप रो आइटम अवेलेबल रहिबो बाकी डिटेल क्लास अपन रो अवेलेबल अछि ऑलरेडी ऐप ऊपर सेट्रु पढंतु बट दिस इज योर ए क्रैश कोर्स टाइप ऑफ क्लासेस व्हिच विल बी वेरी इंपैक्टफुल इन योर प्रिपरेशंस ओके जो भी भाई भौनी मान को ज्वाइन करियार अछि क्लासेस रे यू कैन ज्वाइन अस वेलकम डाउनलोड द कांसेप्ट डिकोडर एंड्रॉइड एप्लीकेशन एंड स्टार्ट योर प्रिपरेशंस ऑडियो ठीक आसुची कुहंतु तो कंटिन्यू करिवा नले माइक किनवा पड़ियो जदि ठीक ठाक आसुची तो एबे किछि दिन मिलुनी ऑनलाइन ऑर्डर करिवि जदि ठीक ठाक आसुची तो ठीक अछि ओके सो वेल विथ दिस आई एम एंडिंग दिस पर्टिकुलर लाइव टुडे संध्या रे मिसियो आजी संध्या रे क्लास करिवा स्ट्रक्चर एनालिसिस रो ऑल द बेस्ट जय जगन्नाथ भाई भौनी माने टेक केयर गुड लक हैव ए नाइस डे